السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ میں آج آپ لوگوں کو نماز کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، اس نماز کے بارے میں کہ جب کبھی کسی کو حاجت پیش آتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے جو دور نہیں ہوتی ہے، یا کوئی ایسی دعا ہوتی ہے جو وہ برسوں سے کرتا آیا ہوتا ہے، یا جو کوئی دل میں حاجت، کوئی مراد ہوتی ہے کہ وہ پوری ہو جائے، اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں صلاۃ الحاجت کی نماز۔ نیت کرتے ہیں کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کرتی ہوں۔ اور اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے، یا کسی کو ایسا لگے کہ میں بہت گنہگار ہو گئی ہوں، یا کئی دنوں سے میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، یا تو کئی لوگ ایسے ہیں جو روز پڑھتے ہیں، اسے صلاۃ التوبہ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے یہ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرتے ہیں کہ یا رب، میں اپنے تمام پچھلے گناہوں کے توبہ کرتی ہوں تیرے بارگاہ میں، اور سچے دل سے استغفار کرتی ہوں، مجھے معاف فرما، اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ کئی لوگ شکرانہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح الگ الگ طرح سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ وہ جب مدرسے میں طالب علم تھے تو انہوں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ انہیں اس وقت بتایا گیا تھا کہ روزانہ اگر 6 نفل پڑھے تو بہت بہتر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہیں بتایا گیا کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھی جائے، نفل نماز، کہ تمام گناہوں کی معافی کی نیت سے، توبہ کی نیت سے صلاۃ التوبہ پڑھی جائے۔ پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی جائے، مطلب جو بھی ہمارے دن بھر میں خواہشیں ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہے، کوئی مطلب ہوتے ہیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو تو پورا فرما دے، تو اس طرح کی چیزوں کو جب ہم صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے۔ اب وہ عالم کہتے ہیں کہ انہیں مدرسے میں بتایا گیا کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے، اور 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیے۔ مطلب شکر کا مطلب جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ان سب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ جب ہم کسی چیز پر شکر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری ان نعمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب جب ان عالم نے مدرسے میں یہ بیان سنا تو کہتے ہیں کہ میں روز پڑھتا تھا، روز یہ 6 نفل، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے، 2 رکعت صلاۃ الحاجات کے، اور 2 رکعت صلاۃ الشکر، مطلب ہر نعمت پر اللہ کا شکر۔ اب 6 نفل وہ روز پڑھتے تھے، روز، اور کہتے کہ میرے کام بہت آسان ہو جاتے۔ میں کئی سال پڑھتا رہا، لیکن اس کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دورہ حدیث میں گئے تھے، مطلب وہ جب آگے کے اگزام دے رہے تھے دورہ حدیث کے، تو اس وقت مسلم شریف کے ان کے استاد تھے، مطلب مسلم شریف ایک حدیث شریف کی کتاب کا نام ہے، ان کے استاد نے، رفیع عثمانی صاحب نے بتایا کہ صرف، یعنی وہ رفیع عثمانی صاحب نے اپنا معمول بتایا، ابھی اتنے بڑے عالم اپنا معمول بتا رہے ہیں ان کو کہ دن بھر میں کئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں انہیں، مصروفیات کی وجہ سے بار بار ہر چیز کی نفل تو نہیں پڑھ سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں 5 نیتیں کرتا ہوں اور صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، اور ان 5 نیتوں کی وجہ سے جب میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کافی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب آئیے، یہ کون سی نماز ہے؟ پہلے تو ہے کہ 2 رکعت کر کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں جیسے وہ عالم پڑھتے تھے، ٹوٹل 6 رکعت ہوئی۔ اب یہ ان کے استاد انہیں بتا رہے ہیں کہ میں صرف 2 رکعت پڑھتا ہوں، لیکن نیتیں میں 5 کرتا ہوں، کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے میں اتنے نفل نہیں پڑھ پاتا، اور ضروری میرے اتنے کام ہوتے ہیں کہ مجھے ان نمازوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں 5 نیتیں کرتا ہوں۔ نمبر 1 صلاۃ التوبہ، مطلب گناہوں پہ توبہ کی نماز۔ پھر کہتے ہیں کہ میں دوسری نیت کرتا ہوں صلاۃ الحاجات، کہ اپنی خواہشیں، دعائیں، اپنی مرادیں، منتیں اللہ سے منگوانے کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نیت کرتا ہوں۔ مطلب نماز ایک ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے پہلے دل میں نیتیں کی جا رہی ہے کہ صلاۃ التوبہ کی نماز، صلاۃ الحاجات کی نماز، پھر صلاۃ الشکر کی نماز، مطلب اللہ نے جو صحتیں دی ہے، ہمیں عافیتیں دی ہے، اولاد دیے ہے، شوہر دیے ہیں، والدین دیے ہیں، گھر دیا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ ساری نعمتیں ہی ہیں۔
तो वो कहते हैं कि फिर मैं पढ़ता था सलातुल शुक्र की नियत करता, फिर कहते कि मैं सलातुल इस्तिआनत की नियत करता। सलातुल इस्तिआनत का मतलब अल्लाह से हर काम में मदद मांगना, हर काम में। मतलब हम कहते हैं ना, ये काम मुझसे नहीं हो रहा है, वो चीज़ टूट गई, ये चीज़ बहुत बोझल हो गई, मैं ये करने निकली थी लेकिन वो नहीं हुई, तो कहते कि मैं दिन के आगाज़ में ही क्या करता कि 2 रकात सलातुल तौबा, सलातुल हाजत, सलातुल शुक्र, सलातुल इस्तिआनत, मतलब अल्लाह की हर काम में मदद मांगने की भी नियत कर लेता। और 5वीं आखिर में नियत कहते हैं कि मैं सलातुल इस्तिखारा की भी नियत कर लेता। सलातुल इस्तिखारा मतलब जो भी हम फैसले दिन भर में करते हैं। अब वो तो इतने बड़े उस्ताद थे मुस्लिम शरीफ के, लेकिन वो कहते हैं कि सलातुल इस्तिआनत से क्या होता था कि दिन भर के हम जो भी फैसले लेते थे ना, अल्लाह ताला उसमें सही रहनुमाई फरमाते थे। अब देखिए कि जब हम ये 5 नियतों की बरकत से नमाज पढ़ लेते हैं ना, तो वो उस्ताद फरमाते हैं कि 5 नियतों की बरकत से मुझे दिन भर के सारे कामों में बहुत आसानी हो जाती है। सलातुत तौबा से दिन भर के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह, इसे रोज़ पढ़िए। अब देखो वो 2 रकात में ही इतनी नियतें। फिर कहते हैं सलातुल हाजात से दिन भर की सारी ज़रूरियात ख्वाहिशें पूरी होती रहती है। और सलातुल शुक्र मतलब नेमतों पर शुक्र की जो नमाज है, इन तमाम नेमतों में इजाफा भी होता रहता है। और वो उस्ताद फरमाते हैं कि सलातुल इस्तिआनत से दिन भर हर काम में अल्लाह ताला की ख़ास मदद शामिल होती है। जो मैंने बताया ना, इस्तिआनत का मतलब अल्लाह की मदद, इस्तिआनत का मतलब मदद। और जब सलातुल इस्तिआनत हम पढ़ते हैं तो दिन भर के कामों में अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है। और 5वीं जो होती है वो सलातुल इस्तिखारा की नियत से कि दिन भर में या रब मुझे फ़ैसला करने में बिल्कुल भी तंगी नहीं होनी चाहिए। जो भी फैसला हो, जो भी हम डिसीज़न लेते हैं, जो भी हम काम करते हैं, मतलब कभी कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, किसी को इनकार करते हैं, किसी के कोई काम पे इकरार करते हैं ना, तो जब हम इस्तिखारा करने की नियत से 2 रकात पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला हक जो है ना वो वाज़ेह कर देते हैं इंसान के नज़र में। 2 और 2 4 की तरह हक सामने आ जाता है और फैसला आसान हो जाता है, सच्चा हो जाता है। तो ये इसकी वजह से इंसान क्या होता है कि अल्लाह ताला से गाफिल नहीं होता। कि जब हम ये 5 नमाज़ें पढ़ लेते हैं ना, 5 नियतें करके सिर्फ 2 रकात नमाज। एक तो ये जो मैंने पहले बताया कि 6 रकात हम पढ़ सकते हैं, और ये इतने बड़े उस्ताद 5 नियतें करके सिर्फ 2 रकात अदा कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह, बेशक ये नमाज अल्लाह का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफ़ा है। ये वो तोहफ़ा है जो हमें अल्लाह से मिला देता है। जब हम मुसल्ले पे खड़े रहते हैं ना, तो देखो किसी इबादत को मेराज नहीं कहा, लेकिन कहा कि नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज मतलब क्या? बहुत उरूज, ऊंचाई, बुलंदी पर ले जाने वाली। एक बंदा जब अल्लाह के सामने खड़ा होता है ना, तो वो अल्लाह से बातें कर रहा होता है, मुलाकातें कर रहा होता है, सरगोशियाँ कर रहा होता है। सरगोशी का मतलब क्या है? हम किसी अपने से, अपने महबूब के कान में जो कोई आहिस्ता से बात कर देते हैं, कोई राज़दारी की बात कर देते हैं, कोई दर्द और गम बांट लेते हैं कि सामने वाले को उसकी खबर क्या, उसकी आहट भी नहीं होती कि हमने अपने दोस्त से, अपने महबूब से कान में कहा क्या है। बिल्कुल इसी तरह नमाज का मामला है कि हम अल्लाह ताला से सरगोशियाँ करते हैं, मोहब्बतों के इजहार करते हैं, अपने तकलीफ़ों के गिले शिकवे करते हैं, लोगों के अगर सताए हुए हैं तो उनकी शिकायतें मौला के हुजूर करते हैं। कोई आने वाले फ्यूचर के वक्त का डर और खौफ होता है तो उसका तज़किरा अल्लाह से करते हैं कि या रब हमारी ये सारी चीज़ें आसान फरमा दे। तो देखो ये कितनी आसान नमाज है कि 2 रकात नफिल अगर हम पढ़ लें और इसमें 5 नियतें कर लें, और 5 ही क्यों, जो भी आप नियत करना चाहते हो ना, जो भी और भी आपकी कोई है, पर देखो इन 5 नियतों में सारी की सारी आ गई।
मैं लिख के भी दे दूँगी ये 5 नियतें। तो आप अगर ये 2 रकात इन नियतों से साथ पढ़ने का मामूल बना लेंगी ना, तो ज़िंदगी, कब्रें और क़यामत के दिन जगमगाने वाले चेहरे पाएंगे इंशाअल्लाह आप लोग। क्योंकि देखो, 2 रकात सलातो तौबा अगर रोज़ पढ़ लेंगे तो क्या अल्लाह ताला हमारे अमाल नामे में कोई गुनाह बाकी रखेंगे? पर नियत होनी चाहिए कि अल्लाह पिछले गुनाह को माफ़ फरमा दे और आने वाले दिन हम तौबा करते हैं, गुनाहों से बचने का इरादा रखते हैं, या अल्लाह तू हमें गुनाहों से पाक ज़िंदगी अता फरमा। जब हम ये नियत करते हैं, फिर दूसरी नियत हम करते हैं कि सलातुल हाजत, जो भी दिल में ख्वाहिश है, जो भी मसले अटके पड़े हैं, जो भी मुश्किलें सामने खड़ी है, जो काम फंसे हुए हैं, वो सारी चीज़ों को लेके फिर 2 रकात की नियत, फिर शुक्र की नियत 2 रकात, फिर इस्तिआनत मदद, मतलब हर मुश्किल में अल्लाह की मदद चाहना, और 5वां ये कि सलातुल इस्तिखारा, मतलब इस्तिखारे की नियत करके 2 रकात नमाज। तो ये 5 नियतें करके जब हम सिर्फ एक बार 2 रकात नफिल पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह वो हमें काफ़ी हो जाएंगे। और क्यों ना हो, क्योंकि नफिल नमाज तो और बात है कि अल्लाह ताला के का क़ुर्ब हमें नफिल नमाज से मिलता है, पर उसके पहले यह है कि फ़र्ज़ों की पाबंदी होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जो हम पर फ़र्ज़ आयद किए हैं उनके हमें बहुत अच्छे से पाबंदी वक्त पर पढ़ना चाहिए। और ये 2 रकात नमाज 5 नियतों से जब हम कर लेंगे ना, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि दुनिया और आखिरत संवर जाएंगी। क्योंकि जब 2 रकात सलातुत तौबा रोज़ पढ़ी जाए तो क्या गुनाह बाकी रहेंगे? रोज़ सलातुल हाजत पढ़ी जाए तो क्या कोई ऐसी हाजत होगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अधूरी रखेंगे? जब रोज़ सलातुल शुक्र पढ़ा जाए तो कुरान में फरमाया गया है कि अगर तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हें और दूंगा और दूंगा। तो फिर सलातुल शुक्र क्यों न पढ़ी जाए, मदद की नमाज सलातुल इस्तिआनत क्यों न पढ़ी जाए। तो इन 5 नमाज़ों को अपने पल्लों से बांध लो। आज ऐसा ख़जाना आप लोगों को मिल गया है कि 2 रकात नमाज और इतनी अजीम और बुलंद तो बाला, इतने बड़े जय्यद आलिम ने अपना पर्सनल नुस्खा अपने तलबा के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ जो शेयर किया, उन्होंने हम तक ये बात पहुंचाई। अल्लाह ताला की हमसे ये मोहब्बतें हैं, हम पर ये एहसान है जो अल्लाह ताला ने हम तक ये नुस्खा पहुंचाया, हम गुनहगारों तक ये नुस्खा पहुंचाया। और ये पहुंचाने की वजह भी ये है कि हम भी गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजारें, हम भी अपनी हाजतों को अल्लाह से मनवा लें, हम भी शुक्र अदा करने वाले बन जाएं, हम भी अल्लाह से मदद मांगने वाले बन जाएं, और हम भी अपने हर काम में अल्लाह की रहनुमाई मांगने वाले बन जाएं। तो बिल्कुल बिल्कुल आप दिन में कोई एक वक्त निकाल ले, इशराक के वक्त, चाश्त के वक्त, या तहज्जुद के वक्त, या मगरिब की नमाज के बाद, या इशा की नमाज के बाद, कभी भी हो ये 2 रकातें अगर आप पढ़ लें और ये नियतें कर लें तो अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह ताला हमारी हर काम में मदद फरमाए, हर हाल में मदद फरमाए, हमारी तकलीफ़ों को दूर फरमाए, और इस नमाज की रोशनी से हमारी दुनिया और आखिरत जगमगा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।